पूरी दुनिया के अंदर इंडिया सबसे हेटेड कंट्रीज में से एक है। हमारे खिलाफ जितने स्टीरियोटाइप्स हैं शायद ही उतने किसी और कंट्री के खिलाफ होंगे। इन स्टीरियोटाइप्स में ऐसी चीजें आती हैं कि इंडिया के अंदर घरों में टॉयलेट्स नहीं है, इंडियंस शावर नहीं करते, इंडियंस कॉल सेंटर में सिर्फ स्कैम करते हैं और इंडियंस के अंदर से एक अबसर्ड स्मेल आती है और आए दिन इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में रेसिज्म का सामना भी करते हैं। अभी रिसेंटली एक इंडियन ब्लॉगर को साउथ कोरिया में ब्राउन स्किन की वजह से रेशियली अब्यूज किया गया। कुछ साउथ कोरियन क्लब्स में इंडियंस की एंट्री अलाउड नहीं है और पूरा वर्ल्ड इंडियंस को एक इंफीरियरिटी की नजरों से देखता है। Three overwhelming things about India. Do not go to India if you can deal with these three things. The glances from Indian men. The constant attention from strangers, whether it's curious glances or requests for selfies, can be overwhelming at times. Also, these men are not familiar with personal space. They will come up to your face to ask for a photo or take a selfie when you're just standing around. The trash. You'll be shocked by the amount of trash lying around India. It was disheartening to see how some truly stunning places are overshadowed by poor waste management. Chenny Chowk. भाई हम लोग बहुत चिल्लाते हैं कि हमारा देश महान है, तो फिर ऑनलाइन हम लोगों को इतना गंदा और बदतमीज क्यों बोला जाता है? अब प्लीज बुरा मत मानिएगा, पर हम लोगों में सिविक सेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है। हम लोग फॉरेनर्स के साथ बदतमीजी करते हैं, खुलेआम सड़कों पर हगते और मूतते हैं, बीच सड़क पे खड़े होकर जोर जोर से म्यूजिक बजाते हैं और ये दिखाते हैं कि हमें दूसरे की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज चाहिए, पर हम उनकी कोई कदर नहीं करते। हम इंडिया छोड़ देते हैं, फिर भी बाहर जाके दिखाते हैं कि हम इंडिया से आए हैं। हद तो तब हो गई जब ये बंदा कनाडा में वहां के फूड बैंक से फ्री का सारा राशन ले आया, झूठ बोल के, जो राशन सिर्फ वहां पे स्टूडेंट्स और होमलेस लोगों को दिया जाता है। हम लोग ये सारे गंदे काम कर रहे हैं, फिर भी चिल्लाने में बिजी हैं कि हमारा देश महान है, लेकिन हम कहीं भी अपने देश का नाम खराब करने से आपने देखा होगा कैसे हमारे देश का नाम खराब हो रहा है। अभी मैं आपको कुछ और वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे हमारे फॉरेन के लोग जब इंडिया आते हैं तो कैसे एक्सपीरियंस फेस करते हैं। आप खुद देखिए और खुद रियलाइज़ करिए कि क्या ये सब जो कुछ हो रहा है ये सही है क्या? क्या अभी हमें डेवलप होने की जरूरत नहीं है क्या? Hello sir. This is the RTO form. Well, so I have to fill in a form just to drive in a taxi? Yes. 11,436. Do I not give this to the road traffic officer directly? Where you found traffic officer? If I don't know where he is and he's not going to take money from me, why do I need to care? If you don't give me, myself paying. Why are you paying? Because I am the travel agent. What is this? We make Ma'am. Sorry, no. Can we go? आप कुछ I'm भी supposed to pay money. बाहर का supposed to pay money for Uber. देखा नहीं है मैम, ये No, बाहर can you close the door? Please use your seatbelt for your safety. What is that? Crowds in India become too overwhelming, and we have just been saved by a local man here after coming to visit this amazing building. I'll tag the location, but you can see everybody in the street down there. We did originally turn up at the bottom, at the base of the building, to get some photos, but I'm not even joking, we got swarmed by about 100 different locals wanting to take photos. I'll put a clip on screen. And then this man right here in the pink decided to save us and take us over. You will be surprised when you come to India. Yeah, we have more heritage and in architectural structures. We are more ancient than you guys, I guess. It's very different and unique. I mean, even if you come to my village have more ancient building than this. I am leaving this city. Yeah. I'm leaving this city right now, brother. I'm done. Yes. जो छेद आप देख रहे हो ये एसी का वेंट है ट्रेन में। तो क्या है कि किसी भाई को बहुत ज्यादा जरूरत होगी, वो उखाड़ करके अपने घर ले गया। तो सरकार सुविधा दे रही है, लेकिन हमारे लोगों ने भी ठान रखा है, चैलेंज कर रखा है सरकार को कि तुम सुविधा दे के दिखाओ, उसका सत्यानाश करना हमारा काम है। सरकार चीजों को बदलती रहेगी, सुविधाएं देती रहेगी, नई ट्रेन आती रहेंगी, पर हमारी जनता उनको
कोई कसर नहीं छोड़ेगी पुराना करने में, पुराने जैसा दिखाने में। अपकमिंग जनरेशन को सिविक सेंस क्या सिखाएंगे जब लोग खुद इतने गवार हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक कपल को रोड साइड बाइक रोककर कचरा फेंकते हुए, और वो भी उस बोर्ड के पास जहां कचरा फेंकने पर फाइन मेंशन किया हुआ है। हैरानी की बात ये है कि छोटा बच्चा अपनी मम्मी को बोर्ड दिखा रहा है कि देखो क्या लिखा हुआ है, लेकिन पेरेंट्स उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हम स्कूल्स पर जोर डालने की बात कर रहे हैं कि सिविक सेंस बच्चों को एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाए, लेकिन अगर पेरेंट्स ऐसी हरकतें करेंगे तो बच्चे स्कूल की सिखाई बातों पर क्यों ही गौर करेंगे। जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज अपने बच्चों के सामने ये सब करने की बजाय उन्हें सिविक सेंस सिखाए। उन्हें बताए कि घर से बाहर पूरा देश एक डस्टबिन नहीं है। उन्हें बताए कि अननेसेसरीली हॉर्न क्यों नहीं बजाना चाहिए, क्यों पब्लिक प्लेसेस में ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, या स्पीकर पर वीडियोस नहीं देखनी चाहिए, क्यों यहाँ वहाँ थूकना गलत है, क्यों लाइन नहीं तोड़नी चाहिए, क्यों एयरप्लेन रुकने से पहले ही खड़े नहीं होना चाहिए, क्यों पब्लिक वॉशरूम्स यूज करने के बाद फ्लश करना जरूरी है, और कैसे हमारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से वर्ल्ड वाइड आज ये हालत है। वीडियो को शेयर कीजिए और भारत को सिविक सेंस सिखाने में हमारी मदद कीजिए। 2015 में इंदौर था देश के सबसे साफ शहरों में 149वें नंबर पर, लेकिन आज 7 साल से लगातार नंबर 1। आखिर इंदौर ने ऐसा क्या किया जो बाकी शहर नहीं कर पाए? ये है देवगुराड़िया, जो कभी 70 साल तक एक डंपिंग ग्राउंड था। आज यहाँ बना है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट। 15 एकड़ में फैला ये प्लांट 150 करोड़ की लागत से बना और हर दिन 550 टन कचरे से 19 टन सीएनजी प्रोड्यूस करता है। और इसी सीएनजी से इंदौर की 400 से ज्यादा बसें चलती हैं। बाकी शहरों से अलग इंदौर में घर घर जाकर सफाई कर्मचारी कचरा उठाते हैं, गीले और सूखे कचरे को अलग करते हैं और फिर इसे एनर्जी प्लांट्स में भेजा जाता है। जीपीएस और स्मार्ट वॉच सिस्टम से सफाई कर्मचारियों की मॉनिटरिंग होती है, जिससे हर गलती पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। सोचिए, कोई चिप्स का खाली पैकेट नहीं, कोई प्लास्टिक बैग नहीं, कोई आवारा जानवर नहीं, यहाँ तक कि गायें भी नहीं। इंदौर की सब्जी मंडी तक में अलग अलग डस्टबिन रखे जाते हैं ताकि कचरा सही जगह पहुंचे। रंग पंचमी के बाद जब पूरा शहर रंगों से सराबोर था, इंदौर ने महज 23 मिनट में पूरा शहर चमका दिया। Listen to what this foreigner has to say about Indore. This is why this place is clean. Indore, all around it, I've always seen somebody cleaning. अगर आप सड़क पर गंदगी फैलाते हैं तो इंदौर आपको पहचान भी लेता है और शर्मिंदा भी कर देता है। स्टारबक्स के बाहर एक कपल ने कप फेंका, अगले दिन उनकी फोटो उसी जगह लगी थी। यह है इंदौर का तरीका किसी को सजा देने का। जब पूरा शहर सोता है तब भी यहाँ सफाई नहीं रुकती। इंदौर को 7 साल से सबसे स्वच्छ शहर बनाने वाले हैं इसकी जनता, नगर निगम और सफाई मित्र, क्योंकि सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शहर भी इंदौर जैसा साफ हो तो इस वीडियो को शेयर करें और गुडी बैग ऐप को डाउनलोड करें। सारी ड्राई वेस्ट और ई वेस्ट को गुडी बैग आपके घर से उठवाएगा और बदले में आपको मिलेगा उसका सही प्राइस।